Okay students, so let's get started with AS level physics paper 1 May June 2022. The paper code is 9702/12. So let's get started with question 1. We have some data points first and then we have some formulas. Let's get started with the question 1. Which estimate is reasonable? So as I have told you guys earlier as well कि AS physics में पहला या दूसरा सवाल is of rote learning या rectification या estimates, ठीक है. तो इसके लिए you have to practice as much papers as possible. Which estimate is reasonable? 1 into 10 raised to the power minus 3 kg for the mass of sand. No. क्या एक सैंड जो है, एक सैंड की ग्रेन जो है वो 1 ग्राम होती है? नहीं, दैट्स रॉन्ग. बहुत ही लाइट होती है, 1 ग्राम से लाइट होगी. तो दिस कांट बी आवर आंसर. अ टेनिस बॉल का वॉल्यूम क्या होता है? 1 into 10 raised to the power minus 2. कैन दिस बी एन आंसर? नो. 1 into 10 raised to the power 0, मतलब ये 1 जूल ही कहना चाह रहा है. 1 जूल फॉर द वर्क डन ऑफ लिफ्टिंग एन एप्पल फ्रॉम वेस्ट हाइट टू हेड हाइट. हाँ, ये हो सकता है. दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर. तो 1 का आंसर वुड बी सी. What is the symbol for the SI unit of temperature? SI unit of temperature क्या होता है बच्चों? केल्विन. तो 2 का आंसर B हो जाएगा. Which statement about systematic errors is not correct? Not correct statement बताना है. A systematic error can be caused by an incorrectly calibrated instrument. ये correct है. One particular type of systematic error can affect all the measurements by the same amount. ये भी correct है systematic error के लिए. The effect of a systematic error can be reduced by repeating and averaging the measurements. ये incorrect है. तो this will be our answer. हमें वो चीज़ देखनी थी जो systematic error को define नहीं करती या systematic error की property नहीं है. So averaging करने से systematic error ख़त्म नहीं होता. So this is not correct. Let's move on to question 4. Question 4 में क्या लिखा है? An object is moving with an initial velocity u to the right. The velocity of the object changes to its final velocity 3. ठीक है, ये u है, ये v है. हमने क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों क्या होती थी? याद है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी तो इस तरह आप डाउनवर्ड ही रखोगे. ये जो नेगेटिव में इनिशियल है तो इसको आप क्या करोगे? अगर राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंटेड है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर दोगे. कर दो इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. अब बताओ ये हेड टू टेल रूल से कनेक्टेड हैं? यस, कनेक्टेड हैं. तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों? If the head is pointing towards this side or tail is head of first vector is connected to the tail of the second vector, तो यह head to tail rule के अकॉर्डिंग तो कनेक्टेड है. इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ऐसी कोई एरो है? यस, देयर इज आवर आंसर बी. तो 4 का आंसर विल बिकम बी. Let's move on to question 5. A car travels anti-clockwise along a horizontal circular road of radius 12 meter as shown. The car takes 4 seconds to move from position P to Q. भाई पोजीशन P से पोजीशन Q तक जाने में कार को कितना टाइम लगा है? 4 सेकेंड्स. ठीक है, और जो सर्कल का रेडियस कितना गिवन है हमें? 12 मीटर. हमने क्या निकाली है? एवरेज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो मुझे बताओ P से लेकर Q तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये वाला डायगनल या ये वाला हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी? 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, और टाइम कितना है? टाइम इज 4 सेकेंड्स. दिस गिव्स अस एन आंसर ऑफ 4.2 ms-1. तो 5 का आंसर विल बी ए. Let's move on to question 6. So let's move on to question 6. Question 6 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? The water surface in a deep well is 78 meter below the top of the well. तो ये हमारे पास let's suppose एक well बना हुआ है. ठीक है, this is the water surface and the height from the top of the well to the water surface is 78 meter. अब एक मैन है यहाँ पे खड़ा हुआ. ठीक है, वो ड्रॉप करता है एक स्टोन from a height of 78 meter. The speed of sound in air is 330 ms-1. Okay, what is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hit the water? भाई क्या टाइम इंटरवल होगा बिटवीन द पर्सन ड्रॉपिंग द स्टोन? और बेसिकली 2 इवेंट्स हो रहे हैं. एक इवेंट क्या हो रहा है कि पर्सन ने स्टोन ड्रॉप किया. सेकेंड इवेंट क्या है कि द पर्सन हेयर्स द साउंड ऑफ द वाटर हिटिंग द स्टोन या स्टोन हिटिंग द वाटर. इन 2 इवेंट्स के बीच का टाइम बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 इवेंट्स के लिए होना क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टोन जाएगा और वाटर को हिट करेगा. ये होगी हमारी जर्नी 1.
सेकेंड जर्नी क्या होगी, सेकेंड जर्नी ये होगी कि जब स्टोन यहाँ पे वाटर को हिट करेगा ना, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल ट्रैवल टूवर्ड्स द एयर ऑफ द मैन। ये हमारी सेकेंड जर्नी होगी। तो दोनों जर्नीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं। टाइम 1 निकालते हैं पहले। टाइम 1 किस तरह निकलेगा, स्टोन ड्रॉप हो रहा है रेस्ट से, एक्सेलरेशन क्या है 9.81, डिस्टेंस क्या है आपके पास बच्चों 78 मीटर्स, एंड व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट t1। तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें आपको u पता हो, a पता हो एंड s पता हो, सो यू कैन कैलकुलेट t। यस, देयर इज अ फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut बिकम 0 बिकॉज u इज 0, ठीक है। और s आपको क्या पता है 78 इज इक्वल्स टू 1/2 a क्या है बच्चों 9.81 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी कैलकुलेट इट, 78 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81 एंड वी पुट अंडर रूट हेयर, तो हमारा आंसर आ जाता है 3.987। 3.987 इज योर t1, ठीक है, इन सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट जर्नी का टाइम। फर्स्ट जर्नी क्या है बेसिकली कि स्टोन जब आपने वेल में ड्रॉप किया तो कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को वाटर को हिट करने में, दिस इज जर्नी 1। अब सेकेंड जर्नी के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, टाइम t2। लेट्स कैलकुलेट t2। t2 क्या होगा, साउंड जो है जिस स्पीड से इस पर्सन के एयर में आएगा, तो साउंड की स्पीड क्या गिवन है हमें, v is 330 ms-1। डिस्टेंस क्या है बच्चों 78 मीटर। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 330, दिस विल बी अ t2। t2 किसके इक्वल आ गया 78 डिवाइडेड बाई 330, दिस विल इक्वल टू 0.236। 0.236। अब आप t1 प्लस t2 करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4.22 सेकेंड्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, डी इज योर ऑप्शन। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेज दैट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती फोर्सेज की, दे मस्ट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, दे मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट, द फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, नो दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 पे क्या लिखा है, अ चाइल्ड ऑफ मास 60 kg स्टैंड्स ऑन द रफ सरफेस ऑफ स्लेज ऑफ मास 40 kg। तो इन दोनों का कंबाइंड मास क्या होगा 60 kg, डू रिमेंबर दिस, ठीक है। वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द स्लेज, ठीक है, द रोप passes over the fixed frictionless pole and the other end of the rope is held by the child is shown। ओके हो गया। The rope is horizontal, the child pulls on the rope with a horizontal force of 12 न्यूटन। तो यार 12 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस साइड पे भी लग रही होगी और इस साइड पे भी लग रही होगी, 12 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं कंबाइंड मास की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाऊंगा तो किस तरह निकलेगी, F इज इक्वल टू ma। फोर्स कितनी लग रही है बच्चों 24 न्यूटन, मास टोटल कितना है 60 kg इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगी 0.4 ms-2, ठीक है। अब गौर से देखो, अब आपके पास ये कंबाइंड एक्सेलरेशन आई है, यही एक्सेलरेशन इस बॉय की भी होगी और यही एक्सेलरेशन इस स्लेज की भी होगी। अब देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉय एंड द स्लेज, लेट्स लेबल दिस F, ठीक है। और बॉय पे कितनी फोर्स लग रही है ओनली 12 न्यूटन, ठीक है। तो 12 न्यूटन माइनस F इज इक्वल्स टू व्हाट, बॉय का मास कितना है, बॉय का इंडिविजुअल मास है 20 kg, 20 इंटू व्हाट 0.4, दिस इक्वल्स टू व्हाट 12 माइनस F इज इक्वल्स टू 8। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गई बच्चों 4 न्यूटन। तो ऐसा कोई आंसर है, यस 8 का A इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 9। A stone and a foam rubber ball are identical spheres of equal volume. Okay. They are released from rest at time t is equal to 0 and fall vertically. ये equal volume वाली बात याद रखो, ठीक है। Both reach terminal velocity. Which graph shows the variation with time t of the speed v of the stone and of the rubber ball? हमने बताना है इन दोनों ग्राफ्स में से which is the graph of s that is the stone and which is the graph of the rubber ball that is r। तो हमें ये पता है कि रबड़ बॉल और स्टोन का वॉल्यूम सेम है, ये बात याद रखो। तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
तो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसका उतना मास ज़्यादा होगा, ठीक है, और मास ज़्यादा होगा तो यू विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी लेटर। तो मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, स्टोन की या रबड़ की? ऑब्वियसली स्टोन हैज़ अ ग्रेटर डेंसिटी, तो फोम रबर की डेंसिटी विल बी लेस, ठीक है, लेसर डेंसिटी, तो इसका मास भी लेसर होगा, लेसर रो। तो अगर किसी चीज़ का मास जो है वो लेसर है तो वो पहले टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा, तो जो आर है उसका ग्राफ जो है वो फ्लैट लाइन पहले रीच करेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आर का ग्राफ पहले फ्लैट लाइन रीच कर रहा है? ओनली बी इज़ एन ऑप्शन, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10. Two balls are moving towards each other with a speed of 5 meter per second and 15 meter per second respectively. They make a perfectly elastic head-on collision. Ball Y moves to the right with a speed of 7 meters per second. यार आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है कि Y जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड। हमने क्या निकालना है, हमने x की वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो हमें क्या पता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज होती हैं तो 5 + 15। स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होती है, अगर आपकी वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में करनी हो तो 7 + x, ठीक है। अब x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 20 - 7 इज इक्वल्स टू योर x, 13 is equals to your x. 13 ms - 1 to the left will be your what? Speed of x after collision, ठीक है। Let's move on to question 11. Question 11 में क्या लिखा है, two forces form a couple. Which statement describes the two forces? They are in the same direction? No. They are perpendicular to each other? No. They have the same magnitude? C is your answer. Let's move on to question 12. A uniform rod is attached by a hinge at one end to the wall. Okay. The other end of the rod is supported by a wire. Okay. So that the rod is horizontal and in equilibrium. Which arrow shows the direction of the force on the hinge? भाई हिंज पे जो फोर्स लग रही होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक टेंशन की फोर्स है, वेट होगा ड्यू टू द रॉड, ठीक है। तो एक तो बात ये याद रखो कि ये जो टेंशन की फोर्स है ना, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, ब्लू लेट से ये हम कह देते हैं T cos थीटा, ठीक है, ये हमने थीटा लिख दिया। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, तो हिंज एक तो वो फोर्स लगा रहा होगा टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, क्योंकि वी नो के द थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो कोई भी फोर्स जो है वो अनबैलेंस नहीं रहेगी। टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी बैलेंस्ड बाय द हिंज की हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, और हिंज एक वर्टिकल फोर्स भी लगा रहा होगा इस तरह अपवर्ड, ठीक है, वाई टू बैलेंस आउट द वेट और टेंशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। दीज आर नॉट कनेक्टेड टू हेड अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम इधर से मिटाते हैं एंड वी मेक अ एरो लाइक दिस एंड द रिजल्टेंट बिकम्स दिस रेड लाइन, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है, यस, डी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 13. अ डाइविंग बोर्ड ऑफ लेंथ 5 मीटर, पूरे बोर्ड की लेंथ क्या है 5 मीटर, इज हिंज्ड एट वन एंड, ये हमारा पिवट हो गया, ठीक है, एंड सपोर्टेड 2 मीटर फ्रॉम इट्स एंड बाय अ स्प्रिंग, ये 2 मीटर्स अवे है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इसका 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अ चाइल्ड ऑफ मास 40 kg स्टैंड्स बाय द फार एंड ऑफ द बोर्ड, ओके। तो चाइल्ड जो है वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 40 × 9.81, ठीक है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कॉज्ड बाय द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ द बोर्ड, बस कंप्रेशन निकालनी है हमने, इसकी ई निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम ये करेंगे बच्चों कि लेट मी टेक सम स्पेस ऑन दिस साइड, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। बॉय जो है वो कौन से मोमेंट्स लगा रहा होगा, द बॉय या मास ऑफ चाइल्ड विल बी क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 40 × 9.81 और पिवट से कितना डिस्टेंस है 5 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स में क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स में हमारे पास एक फोर्स होगी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, के ई इंटू डिस्टेंस कितना है 2, तो के हमारे पास है, यस, दैट इज 10 किलो न्यूटन, 10 × 10⁻³ ई हमने निकालना है, डिस्टेंस क्या है 2, तो पूरी इक्वेशन में अननोन वेरिएबल क्या है, ओनली ई, कैलकुलेट करो, ई कम्स आउट टू बी 0.0981 मीटर्स। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, सारे सेंटीमीटर्स में, सो यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सेंटीमीटर्स, 1 2 2 डेसिमल प्लेस आगे ले जाओ अपना डेसिमल पॉइंट, तो दिस बिकम्स 8.1
9.81 सेंटीमीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा हुआ है? अ ग्रेनाइट रॉक एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज डेंसिटी दिस, द रॉक इज ट्रांसपोर्टेड टू द सर्फेस ऑफ एन अदर प्लैनेट। यार एक रॉक है अर्थ के सरफेस पे जिसकी डेंसिटी है रो, ये रॉक जो है वो किसी और प्लैनेट पे ट्रांसफ़र कर दी है हमने, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक ऑन द अदर प्लैनेट। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑल्सो स्टेज, मास स्टेज, बल्कि इसको हम ऑल्सो नहीं लिखते, सिर्फ स्टेज लिखते, मास स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट एवरी प्लैनेट। और वॉल्यूम का भी यही होता है कि इट स्टेट्स कांस्टेंट थ्रू आउट एवरी प्लैनेट। तो मास भी अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम भी अनचेंज रहेगा, तो डेंसिटी भी ऑन द अदर प्लैनेट विल रिमेन चेंज। सो बी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 15। A closed U-shaped tube contains a stationary liquid of density rho. Okay. One side of the tube contains a gas at pressure P1 and the other side contains a gas at pressure P2 as shown. Okay. The acceleration of free fall is g. Which equation is correct? तो यार आपने liquids में क्या पढ़ा है? Points in a liquid at the same height have the same pressure. तो let's suppose ये हमारा point x हो गया, ये point y हो गया। प्रेशर एट एक्स मस्ट इक्वल टू प्रेशर एट वाई। प्रेशर एट एक्स किसकी वजह से होगा? सिर्फ ये गैस प्रेशर की वजह से, दैट इज P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट वाई। प्रेशर एट वाई किस चीज़ के इक्वल होगा? ये गैस प्रेशर तो होगा ही होगा, बट वी विल ऑल्सो हैव सम प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट ऑफ द लिक्विड। ये हाइट ऑफ द लिक्विड कितनी है? y माइनस जेड प्लस रो जी y माइनस जेड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? P1 माइनस P2, यस, सी इज आवर ऑप्शन। हम P2 को अगर यहाँ पे ले जाएं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी y माइनस जेड। एग्जैक्ट सिमिलर सी वाला आंसर। सो सी विल बी आवर आंसर। लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 16। विच प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू पावर। तो पावर किसके इक्वल होता था? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 17। Researchers have developed a new type of filament lamp with an efficiency of 40%. यार ये E new जो है ना वो है हमारे पास 0.4। Old type of filament lamp have efficiency of what? Old type of filament lamp की efficiency थी 5% या 0.05। देखो न्यू फिलेमेंट लैम्प जो है उसकी efficiency है 0.4। ओल्ड फिलेमेंट लैम्प जो है उसकी एफिशिएंसी है 0.05 या 5%, ठीक है। या परसेंटेजेस में लिखो या पॉइंट्स में लिखो, इट इज़ अप टू यू। द टू टाइप्स ऑफ फिलेमेंट लैम्प प्रोड्यूस सेम यूजफुल आउटपुट पावर। तो दोनों की आउटपुट पावर इज द सेम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनपुट पावर ऑफ द न्यू लैम्प डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर ऑफ द ओल्ड लैम्प। चलो इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो कॉलम्स बना लेते हैं, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी ऑफ ओल्ड क्या थी? एफिशिएंसी ऑफ ओल्ड वाज 0.05। एफिशिएंसी ऑफ न्यू क्या है बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ न्यू है 0.4। ओल्ड के लिए आपके पास पावर आउटपुट क्या था? P0। न्यू के लिए भी आपके पास पावर आउटपुट क्या है? P0। P इनपुट फॉर न्यू हमें निकालना है, रेशो निकालना है बेसिकली, P इनपुट फॉर न्यू एंड P इनपुट फॉर ओल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एफिशिएंसी ओल्ड को यहाँ पे रखते हैं, इज इक्वल्स टू P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट, ठीक है। न्यू से सॉरी आई हैव रिटन दिस इनकरेक्ट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यू और ओल्ड में गलती कर दी है। दिस विल बिकम P इनपुट ओल्ड, दिस विल बिकम P इनपुट न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे भी वी विल स्विच इट टू P इनपुट ओल्ड। ओके हो गया। एफिशिएंसी क्या है बच्चों? ओल्ड की 0.05 मल्टीप्लाइड बाय P इनपुट ओल्ड इज इक्वल्स टू P0, ठीक हो गया। अब ये एफिशिएंसी भी यूज़ कर लो, 0.4 इज इक्वल्स टू P0 डिवाइडेड बाय P इनपुट न्यू। सो 0.4 इंटू P इनपुट न्यू इज इक्वल्स टू P0। तो अगर आप गौर से देखो, एंड इफ आई मिनिमाइज इट, ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो यू हैव टू इक्वेशंस फॉर व्हाट? P0। दिस इज इक्वेशन 1 फॉर P0, दिस इज इक्वेशन 2 फॉर P0। दोनों को इक्वेट कर दो। 0.05 इंटू Pi ओल्ड इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू Pi न्यू, ठीक है। हमने न्यू वर्सेस ओल्ड का रेशो निकालना था, तो ओल्ड को मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। P न्यू
divided by p old is equals to what? Is equals to what? 0.05 divided by 0.4 which is equal to 0.13. तो ऐसा कोई आंसर है? Yes, A is your option. Let's move on to question 18. Question 18 में क्या लिखा है बच्चों? A student attempts to derive the formula of kinetic energy. Okay. She begins by considering an object of mass m which is initially at rest. Okay, a constant force F is applied so that the object causes it to accelerate to its final velocity v in displacement x in displacement s. The kinetic energy gained by the object is equals to the work done of the object by the force F. ठीक है. Which equation does the student not need in order to derive the formula for kinetic energy? अगर सी वाली इक्वेशन देखो तो इट इज़ द इक्वेशन फॉर व्हाट? इट इज़ द इक्वेशन फॉर द एनर्जी इन स्प्रिंग्स. तो ये तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होगी वाइल ड्राइविंग काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन. अ वायर ओबेज हुक्स लॉ एंड हैज़ अ यंग्स मॉड्यूलस ई. हमारे पास ये है. द वायर हैज़ अ ओरिजिनल लेंथ क्या है इसके पास? 1.6 मीटर. डायमीटर हमारे पास ये है. What do we need to calculate? We need to calculate the spring constant. तो बच्चों, do you remember the formula for Young's modulus? FL divided by AE. ये F divided by E क्या हो जाएगा? Spring constant. E is equals to KL upon A. A को किससे रिप्लेस कर देते? pi upon 4 D square. E क्या था बच्चों हमारे पास? 2 into 10 raised to the power 11 into pi upon 4 into d square क्या हो जाएगा? d square is 0.48 into 10 minus 3 square divided by l क्या है बच्चों? l is 1.6. तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू comes out to be 2.3 into 10 raised to the power 4 Newton meter minus 1. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, B is your option. This is सुपर स्क्रिप्ट में 4 नॉट अ नंबर 4. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 20. अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंसाइल फोर्स. विच स्टेटमेंट अबाउट द इलास्टिक लिमिट मस्ट बी करेक्ट? द डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट हैज बीन रीच्ड. तो 20 का ए इज करेक्ट. 21 पे आ जाओ. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स? द डिस्टेंस फ्रॉम अ पीक टू नेक्स्ट टर्फ इज इक्वल टू द वेवलेंथ. नो. दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन रिपल टैंक्स. नो. They consist of vibrating atoms. No. They transfer energy from one position to another. This is correct for all progressive waves. अब आ जाओ इस पॉइंट पे. This is slightly tricky question, तो इसको गौर से देखना. A transverse wave is moving along the surface of some water. This causes a ball to move vertically without moving horizontally. यार बॉल जो है वो ऊपर up and down move कर रहा है as it floats upon the surface. At one instance, the ball is in the positions shown. Okay. The wave has a frequency of this. यार आपको frequency given है तो क्या आप time period निकाल सकते हो? Yes. Frequency अगर आपको given है, so can you calculate the time period? Yes, very easily. Time period is equals to 1 upon frequency. Time period is equals to 1 divided by 0.2. टाइम पीरियड किसके इक्वल हो गया? 5 सेकेंड. तो इसका मतलब ये है कि एक वेव कितने सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही है? 5 सेकेंड्स में. और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि द बॉल मूव्स फ्रॉम हेयर देन टूवर्ड्स हेयर देन टूवर्ड्स हेयर एंड देन टूवर्ड्स हेयर इन हाउ मेनी सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स. ये पूरी ब्लू वाली जर्नी दैट इज़ अ 4-part जर्नी गेट्स कवर्ड इन हाउ मच सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स. ठीक है, चलो अब क्या लिखा हुआ है आगे? एम्पलीट्यूड है हमारा 0.7. ओके हो गया. एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ टर्फ एंड एन एडजेसेंट पीक इज 2.4 मीटर. ठीक है. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इन 20 सेकेंड्स? अब ये याद रखो कि बॉल सिर्फ वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो कितनी वेवलेंथ्स जो है या कितने वेव्स जो है वो मूव कर लेगा ये इन 20 सेकेंड्स. बेसिकली इन 20 सेकेंड्स बॉल के थ्रू कितनी वेव्स पास करेंगी? अगर 5 सेकेंड्स में एक वेव पास कर रही है तो 20 सेकेंड्स में कितनी वेव पास करेंगी? 4. और अगर एक वेव पास करती है थ्रू दिस बॉल तो ये 4-part जर्नी अकर करती है. इस 4-part जर्नी का डिस्टेंस क्या है? 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, 0.7 मीटर. सो वन वेव causes the ball to move how much? 2.8 meters. 4 वेव कितना कॉज करेंगी मूव करना? 2.8 into 4 that is 11.2 meters. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, C is your answer. Let's move on to question 23.
क्वेश्चन 23 में क्या लिखा है, अ साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब साउंड क्या है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेरिएशन विद डिस्टेंस अक्रॉस द रूम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स एट वन इंस्टेंट इज शोन। एट विच डिस्टेंस इज द एयर प्रेशर लोएस्ट। हमने क्या ढूंढना है, रेयर फैक्शन ढूंढना है, क्योंकि रेयर फैक्शन के पॉइंट पे हमारा एयर प्रेशर लोएस्ट होता था। तो लेट्स मेक सम पॉइंट्स जिनके थ्रू वेव अभी तक पास नहीं हुई है। ये आगे पॉइंट्स। अब हम पॉइंट्स बनाते हैं जब इनके थ्रू वेव पास हो गई हो। ए पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। बी अपनी जगह पे 0 पे ही रहेगा, ठीक है। और सी पे क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और डी पे क्या होगा, डी अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा या सबसे लेस एयर प्रेशर किधर होगा, ऑब्वियसली एट पॉइंट डी, क्योंकि डी इज़ द मोस्ट फ्री पार्टिकल कह सकते हो आप, ठीक है। ये भी एक फ्री पार्टिकल है बट इसका ऑप्शन हमें गिवन नहीं गया, ठीक है। सो डी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24। A source emits a sound wave of a single frequency. The Doppler effect causes a different frequency of sound to be heard by a stationary observer. Okay, what is the requirement for the Doppler effect to occur? A source that is moving produces the sound. Correct. 24 का answer would be A. Let's move on to question 25. An electromagnetic wave in free space has a frequency of 5.2 into 10 raised to the power 12 hertz. In which region of the electromagnetic spectrum includes this frequency? Basically हमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि you have a frequency of 2.5 into 10 raised to the power 14 hertz. बताओ ये कौन सी component होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ऑब्वियसली इंफ्रारेड। ये बेसिकली रेक्टिफिकेशन वाला सवाल था। Two polarizing filters are placed next to each other. First polarizing filter का ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 50 डिग्री। सेकेंड पोलराइजेशन फिल्टर का ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 20 डिग्री। बट वी वोंट बी टेकिंग दिस। हम कौन सा एंगल लेंगे, हम एंगल लेंगे दैट इज बिटवीन द टू पोलराइजिंग फिल्टर, मतलब फर्स्ट और सेकेंड फिल्टर के बीच का जो एंगल है दैट विल बी कंसिडर्ड। 20 डिग्री वुडंट बी कंसिडर्ड, ठीक है। द इनिशियल इंटेंसिटी इज 8 वोल्ट्स। तो बेसिकली हमने फाइनल निकालनी है, तो I इज इक्वल्स टू 8 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल कौन सा होगा, 50 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 नॉट 20 स्क्वायर। हमेशा जब भी सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर होता है तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर और फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर के बीच का एंगल देखते हैं। वी डोंट सी द एंगल ऑफ द सेकंड पोलराइजेशन फिल्टर विद द वर्टिकल, ठीक है। तो इसका आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, 2.5 volts meter minus 2. So B will be our answer. Let's move on to question 27. A stationary wave on a stretched string is set up between 2 points P and T. Okay. Which statement about the stationary wave is correct? Point R is at a node. No. Point Q and S vibrate in phase. Yes. ये दोनों एक ही साथ नीचे भी जाएंगे और एक ही साथ ऊपर भी आएंगे, ठीक है। So they are in phase. Let's move on to question 28. A bar vibrates with frequency F, ठीक है, to produce water wave in a ripple tank. Okay. The wave pass through a gap of width x in a barrier so that diffraction occurs. Which combination of the vibration frequency and gap width will produce the smallest angle of diffraction? भाई diffraction हमने smallest करनी है, तो gap विथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो x/2 और x/2 तो कैंसिल हो जाएगा। जब भी आपने डिफ्रैक्शन स्मॉल करनी होती है आप गैप विथ को बढ़ा देते हो, और वेवलेंथ को क्या करते हो, वेवलेंथ को आप स्मॉल करते हो, यू मेक द वेवलेंथ स्मॉल। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या करोगे, लार्ज। तो आपने 2x के साथ देखना है फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट किस ऑप्शन में, ऑब्वियसली इन ऑप्शन डी। सो डी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 29. An outdoor concert has 2 large speakers beside the stage for broadcasting music. Okay. In order to test the speakers, they are made to emit sound of same wavelength and same amplitude. Okay. The curved lines in the diagram represent wavefronts. Where is the loudest sound heard? तो बच्चों loudest sound उधर होगा where a crest combines with a crest or a turf combines with a turf. और ये जो आपके पास सॉलिड लाइंस है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर क्रेस्ट। ये जो सारी सॉलिड यहाँ पे ब्लैक लाइंस है, दीज आर व्हाट, क्रेस्ट, क्रेस्ट,
क्रेस्ट, और ये फर्स्ट सोर्स, ये देखो यहाँ पे दो साउंड सोर्सेज हैं, फर्स्ट साउंड सोर्स एंड सेकंड साउंड सोर्स। ये फर्स्ट साउंड सोर्स की क्रेस्ट है, ठीक है, C1 C1 C1। ये सेकंड साउंड सोर्स की क्रेस्ट हैं, सारी सॉलिड लाइंस, ठीक है। अब दो क्रेस्ट के बीच में ना हमेशा एक टर्फ होता है, ठीक है, दो क्रेस्ट के बीच में हमेशा एक टर्फ होता है, बोथ फॉर सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ठीक है। अच्छा, अब जब भी दो क्रेस्ट ओवरलैप करेंगी या दो टर्फ्स ओवरलैप करेंगी, यू विल हेयर अ लाउडेस्ट साउंड। तो मुझे बताओ ऑप्शन बी में तो टर्फ इज ओवरलैपिंग विद अ क्रेस्ट। हाँ, अगर एक टर्फ ओवरलैप करेगी विद अ क्रेस्ट तो यू विल हेयर नो साउंड या लेस साउंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे का एम्पलीट्यूड कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बी पे यही हो रहा है, ए पे भी यही हो रहा है। ए पे क्या हो रहा है, टर्फ ऑफ द फर्स्ट साउंड इज गेटिंग कैंसल्ड आउट विद द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट साउंड, ठीक है। तो ए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सोर्स 1 का क्रेस्ट इज कंबाइनिंग विद द सोर्स 2 का क्रेस्ट, सो यू विल हेयर द लाउडेस्ट साउंड एट पॉइंट डी। अब आ जाओ क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन 30 पे हमें एक इक्वेशन गिवन है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी। एन क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा। डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स इन द ग्रेटिंग। तो सी विल बी योर आंसर। Let's come on to question 31. The diagram shows a metal block and A, B, C are the sides of the basically block and its volume is V, okay. Each charge carrier has a charge Q, okay, and the number density of the charge carriers in metal is N, okay. It takes each charge carrier an average time T to pass through the block. What is an expression for current I? तो current I किस तरह रिप्रेजेंट होता था, NAQV से। V इज अ वेलोसिटी, तो इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो, एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ क्या होगी इस केस में b, ठीक है। लेट्स डू इट b। q जो है वो अपनी जगह पे q ही रहेगा। वेलोसिटी क्या होगी, b डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि b है वो डिस्टेंस जो करंट ट्रैवल करेगा इन अ टाइम ऑफ t, तो b जो है वो b से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, NQV। हमारे पास बचा क्या है, करंट का स्टेटमेंट। लेट मी मिनिमाइज इट अ बिट। करंट का हमारे पास स्टेटमेंट बचा क्या है, बेसिकली NQV डिवाइडेड बाय t। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, बी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 में हमने क्या करना है, पावर इन लैम्प x को डिवाइड करना है पावर इन लैम्प y से। तो x की पावर क्या होगी भाई, 0.5 स्क्वायर। अच्छा, पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, I स्क्वायर R वाला। 0.5 स्क्वायर इंटू वॉट, 9.6 डिवाइडेड बाय पावर y क्या है भाई, पावर y का करंट क्या है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.2। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.22। सो ए इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 33। The intensity of light incident on a LDR is increased, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज, ठीक है। The temperature of a thermistor is also increased, तो इसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। What happens to in each case the current in the component is maintained at a constant value, okay। तो V इज इक्वल टू आई आर में ये चीज़ कांस्टेंट हो गई है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर दोनों की रेजिस्टेंस कम हो गई है तो दोनों का वोल्टेज भी कम हो जाएगा, डिक्रीजेस का ऑप्शन इज डी एंड डी इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 34। Iron wire has a length of 8 meter and a diameter of 0.55 millimeter, okay. A second iron wire has a length of 2 meter। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ 4 टाइम्स कम हो गई है, लेंथ L/4 हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, R/4। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और क्या लिखा हुआ है, और इट इज़ रिटन कि डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया है। तो हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर एरिया को मैं रिप्लेस कर दूं, लेट मी ब्रिंग द वर्किंग हियर, अगर एरिया को मैं रिप्लेस कर दूं विथ व्हाट, एरिया को मैं रिप्लेस कर दूं विथ डी स्क्वायर, तो देयर मस्ट नॉट बी ए प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। π/4 तो कांस्टेंट है, सो इट विल नॉट गेट काउंटेड इन द प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर आपका डायमीटर जो है वो ट्वाइस हो गया है, इट बिकम्स 2d, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4 अगेन।
तो 2 टाइम्स जो है वो रेजिस्टेंस क्या हो गई है, 4 टाइम्स से डिक्रीज, तो R/4 मल्टीप्लाइड बाय R/4, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/16R। ठीक है, यहाँ पे डबल R नहीं लिखते बिकॉज देन इट विल बिकम confusing for you guys. तो 1/16R will be your answer. 34 का आंसर will be A. Let's move on to question 35. A cell with constant EMF, OK, is connected across a fixed resistor. Over time, the internal resistance of the cell increases. Which change occurs as the internal resistance of the cell increases? A decrease in the charge of each charge carrier, no. A decrease in the potential difference measured across the cell, so B will be your answer. Let's move on to question 36. Kirchhoff's first law is dependent on which conservation principle? Conservation of charge. और second law क्या यूज़ करता है, conservation of energy, तो 36 का आंसर would be A. Let's move on to question 37. Question 37 के लिए let me zoom out a bit so you can see all the 4 drawings. सही है, let me do one thing. ठीक है, a potentiometer circuit is used to determine the electromotive force Ex of a cell. The circuit includes a second cell of EMF E0. यार Ex हमने डिटरमाइन करना है, तो Ex कौन से सर्किट में होगा, सेकेंडरी सर्किट में, और E0 किस सर्किट में होगा, प्राइमरी सर्किट में। ठीक है, एंड Ex इज लेस देन E0, ये भी हमें बता दिया। दिस मस्ट बी एविडेंट कि हमेशा जिस चीज़ का EMF डिटरमाइन करना होता है वो लेस होती है कंपेयर टू द मेन EMF। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने बताना है कि विच सर्किट इज़ द बेस्ट या मोस्ट सूटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पोटेंशियोमीटर का सर्किट डिफाइन कर रहे हो तो आपने एक चीज़ हमेशा देखनी होती है कि बैटरी के टर्मिनल्स आर नॉट ऑल्टरनेट। जैसे इसके प्लस माइनस हैं और इसके माइनस प्लस है और इसके प्लस माइनस है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इस तरह नहीं होना चाहिए, दे शुड बी अलाइंड इस तरह, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एम मीटर लगा होना चाहिए उस स्मॉलर वोल्टेज के साथ, दैट इज Ex के साथ। तो लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई बोथ ऑफ द कंडीशन। तो ए तो जो है वो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बी जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट एम मीटर किसके साथ लगा दिया है, बिगर वोल्टेज के साथ, सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन एज वेल। सी पे आ जाओ, सी पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग वोल्टेज वाली कंडीशन, बट इसमें भी हमने क्या किया है, एम मीटर जो है वो E0 के साथ लगाया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली द रिमेनिंग ऑप्शन इज डी, और उसमें पोलैरिटीज़ भी सही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ही है, और Ex के साथ ही हमारा क्या लगा हुआ है, एम मीटर या वोल्ट मीटर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 38. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, लेट्स जूम इन, अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड एट थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ये तो हमने डिड्यूस कर लिया था, सो वी विल क्रॉस दिस ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी डिड्यूस कर लिया था, सो वी विल कैंसिल दिस एज वेल। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, ये हमने रिड्यूस नहीं किया था, तो सी विल बी आवर आंसर। 4 न्यूक्लियाइज आर रिप्रेजेंटेड बिलो, ओके, which statement about this nuclei is correct? An uncharged atom of element Q has 24 orbital electrons, no. Nuclei G and M are isotopes of the same element, no. When E absorbs a neutron, ठीक है, E अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले तो ये बन जाएगा 2914 E, ठीक है, एंड देन इमिट्स अ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो -4 ऊपर से और -2 नीचे से, तो दिस विल बिकम 25E12E, ठीक है, दिस बिकम्स इनटू M क्या है 2512, यस, सी इज आवर आंसर। ठीक है, जब E एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और फिर एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो मास नंबर कितने से डिक्रीज हो जाएगा, -4 से, और प्रोटॉन नंबर कितने से डिक्रीज हो जाएगा, -2 से, सो यू विल गेट दिस आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 40. A neutron is composed of an up quark and 2 down quarks. When a neutron decays to a proton, a beta particle is emitted. What is the change in the quark structure of the neutron due to the emission of the beta particle? Basically, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, एक डाउन क्वार्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अप क्वार्क और एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। साथ में क्या चीज़ रिलीज होती है, an anti-neutrino. So this marks the end of May-June 2022 का पेपर. If you have any questions, you can ask me in the comments below.